Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who really learned something new in the computer science field under the software engineering, and that is the new series number next part software metrics, and that is already started into the channel by the previous tutorial. That link will be available into the description box. You can check it out, enhance your knowledge. In the previous tutorial we discussed about the software metrics, token count and other numerical portion with the formulas, and in this tutorial I explain all the efforts of the software. So the today's topic is dependent on the Halstead software metrics. So what's the Halstead software metrics set? It said that a computer program is an implementation of an algorithm considered to be collection of tokens that we already learnt about. What is token count? That is the strategy designed by the Halstead software metrics. So the collection of the tokens which can be classified as either operators or operands जो हो उसको कहते हैं Halstead software metrics. So हम एक ये जनरल सा pseudocode ले लेते हैं to solve the problem of the token count that we already in the previous tutorial, and that tutorials available on the channels with all the formula phases and with the C language rules. So that's why yesterday कोई भी आपको tutorial नहीं मिला, क्योंकि मैं एक प्लान कर रही थी कि आपको एक न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ करवाई जाए. सो न्यूमेरिकल आपको आज इसका ज़रूर मिलेगा, जो जब भी आप इसको पढ़ोगे टोकन काउंट को तब भी हेल्पफुल रहेगा ये कोड, या हॉलस्टेड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में वो भी हेल्पफुल रहेगा. अब ये एक जनरल कोड है और हमने सी लैंग्वेज में क्या पढ़ा था? ऑपरेटर्स का अकरेंस पावर एंड ऑपरेंड्स की अकरेंस पावर. अब इनमें हम देखते हैं कि ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं. ऑपरेटर्स हैं क्या? दैट इज की इन बिल्ट कीवर्ड्स in the language. फाइन. सो क्या हुए कि जैसे इफ है, इफ स्टेटमेंट, ये कॉलम, ये आपकी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इक्वल टू, ये ब्रैकेट, द सेमीकोलन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, that they all are the operators. Okay. So what's the operands? वो भी हम देख लेते हैं. Operands क्या है इसमें? So what are the operands? Are variables like L, X are variables, and numbers we used into the pseudocode, that is 3, 2, 4. Fine. Like that, variables and the numbers used in the pseudocodes are the operands. So now we will discuss about the token count strategy. So the token count strategy is what? In the previous tutorial we will discuss about things ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हमने n यूज़ किया था. So there are strategy said that small n is different, capital N is different. You know the language rules, the language C hash, C.NET. Every language is the case sensitive language, so the rules are different about the languages now. So the small n is क्या ये आपको बताता है? That is the distinct, and capital N denotes that the total, जो occurrence आएंगी, जो operators की occurrence आएंगी या कुछ भी आएगा उसका total. And one and 2, there are two variables also. One shows that operators and another 2 said that operands. So ये strategy अच्छे से याद रखिएगा, ये वाली strategy कि n, capital N, small n, 1 and 2, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करना हो तो ये स्ट्रेटजी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी के ऊपर ही सब कुछ आगे बेस्ड है हमारा, और इसी के साथ ही हम आगे की तरफ जब चलेंगे तो ये पाठ हम करेंगे. सो इसके आगे वाले जो हम पाठ करेंगे वो ये है
कि हमने लेना है। आपने फॉर्मूला में देखा होगा N1 N2 एंड कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2, जो मैंने न्यू बोला था और फिर N1 N2 बोला था, आप देख सकते हो। अब बता क्या रहेगा हमें, N1 N2 क्या बताएगा, या ये क्या बताएंगे हमें, ये बताएंगे कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या है। सो जो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स वो बताएगा पर्टिकुलरली, ये इनको कहते क्या हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। इन चारों को कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो जो हम इसमें यूज़ करेंगे। सो स्मॉल n1 बताएगा डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, ये वाला पार्ट, ये डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, एंड n2 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। n1 क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो अकरेंस होगी, फाइन। एंड जो n2 में होगा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की अकरेंस। ठीक है, इसके बाद जो हमने देखना है कि फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूलाज रिपीट कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़े थे कि काउंटिंग के लिए क्या लेना होता है, या आगे के लिए हमने क्या लेना होता है। जो लेना होता है आपने, एक तो कैपिटल n +1 2, जो कि n क्या काउंट करवाता है आपको, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, एंड स्मॉल n सेकेंड फार्मूला, n +1 n1 + n2 ये बताता है वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम। एंड द थर्ड फार्मूला इज दैट हम यूज़ करते हैं प्योरिटी रेशो के लिए। वो थ्योरी में हमने सब पढ़ा था, लेकिन अब हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं तो रिपीट कर लेते हैं इन चीज़ों को। प्योरिटी रेशो में जो आपने यूज़ करना है वो पार्ट है हमारा n, पार्ट है ये यहाँ पे प्योरिटी रेशो। ये देखो n हमने यहाँ यूज़ कर लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने n1 + n2 स्मॉल वाला भी यूज़ कर लिया हुआ है। तो हम प्योरिटी रेशो की बात करते हैं, तो प्योरिटी रेशो क्या सस्पेक्ट करती है, n कैप n, और n कैप क्या है अब उसकी बात करते हैं। n कैप है हमारे पास एस्टिमेटेड लेंथ, और जो हमारे पास n कैप है वो किसके इक्विवेलेंट है, n1 log /2 n1 + n2 log 2 n2। थर्ड प्योरिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला किया हमने। अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। द फोर्थ फॉर्मूला इज फॉर द वॉल्यूम निकालने के लिए। सो जो अब हमने प्योरिटी रेशियो के बाद जो निकालनी है, क्योंकि प्योरिटी रेशियो आपने निकाल ली है, तो अब हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है हमने। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n log 2n, और ये कैपिटल N नहीं है, ये स्मॉल n है। सो फॉर्मूला क्या बना, n log 2n। ये गलती आप ना कर लीजिएगा, ये कैपिटल N का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अलग मीनिंग है और स्मॉल n का अलग मीनिंग है। सो अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। द फिफ्थ फार्मूला इज फॉर द पार्ट जो हमने डिस्क्राइब करना है कि कोई डिफ़िकल्टी अगर आ जाती है प्रोजेक्ट के अंदर, तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स उसको कैसे डिफाइन करता है। सो डिफ़िकल्टी हमने डी के थ्रू निकालनी होती है, डी इसको डिनोट करती है। और निकालनी कैसे है डिफ़िकल्टी, n1/2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय स्मॉल n2। दिस इज द फॉर्मूला, फाइन। एंड द लास्ट फॉर्मूला फॉर द गुड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, इट्स दैट द एफर्ट, जो हमने एफर्ट निकालनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एफर्ट पे भी डिपेंडेंट है। तो जब एफर्ट निकालनी है तो एफर्ट को डिनोट किया जाता है ई, कैपिटल ई के साथ, और निकालनी कैसी है, डिफ़िकल्टी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जो आप वॉल्यूम निकालोगे, ये वॉल्यूम
वॉल्यूम निकालोगे, ये डिफ़िकल्टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। और ये है आपके फॉर्मूलाज जो हम कि आपके न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। सो The numerical will be uploaded by tomorrow as per the schedule surely, and till then you all learned that formula very well, so the numerical part is very easy to all of you. Till then, take care, stay safe, stay tuned for the information part of the software engineering. Thank you.